एरबिल पर एक बड़ा हमला इस वक्त हुआ, जहां पर एरबिल के एक होटल पर ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया। इस होटल में अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे और वहीं पर टारगेट किया गया है। ईरान ने इराक को कैसे निशाने पर लिया, आप वहां पर देखिए। इसके अलावा कई सारे मिलिशिया ग्रुप्स भी इराक में मौजूद हैं जो लगातार समर्थन देते आए हैं ईरान को, और इसी वजह से वहां पर पहले भी ऐसी कई झड़पें निकलकर सामने आई। और अभी जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, आप देखिए, कुछ अमेरिकी सैनिक वहां पर रुके हुए थे। इराक के अंदर भी बहुत सारे अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं जो अमेरिका पूरी तरीके से ऑपरेट करता है। अमेरिकी सेना वहां से ऑपरेट करती है, अमेरिकी फाइटर जेट वहां से ऑपरेट हो सकते हैं। और ये जो होटल था, यहां पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे, उनको टारगेट किया गया है यहां पर। हालांकि कोई नुकसान इसको लेकर हुआ या फिर नहीं, अभी कोई डिटेल्स ऐसी सामने आई नहीं। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध जीता जा चुका है और जो लोग भी इसके जारी होने की बात कर रहे हैं वो फेक न्यूज है। तो देखिए, कई दावे अब तक सामने आए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध को लेकर उनने इस युद्ध को जीत लिया है। This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. और देखिए, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि अब वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यही शर्त भी लगातार अमेरिका की यहां पर थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है, जबकि ईरान के पास ना तो सेना बची है और ना ही नेवी और ना ही उनके पास मिसाइल से सुरक्षा के लिए कोई डिफेंस सिस्टम बचा हुआ है। तो ट्रंप का बयान है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know. But they can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list, but again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, you know, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy and they have no Air Force and they have no missile protection, and most of their missiles are gone. Most of their launches we've killed. You know, we've killed about 82% of their launches. So even if they had a missile, they can't launch it. और देखिए, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही कोई बड़ी डील हो सकती है। उनका दावा है कि ईरान खुद समझौता करना चाहता है और नई लीडरशिप ने उन्हें बड़ा तोहफा भी दिया है। देखिए, ट्रंप के कई दावे अब तक सामने आए। ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है, ये उनका कहना है, लेकिन देखिए, युद्ध अब भी पूर्ण रूप से तो थमा नहीं है। Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you know, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone. But we're dealing with a group of people that I think turn out, and the present, the gift they made to us was very significant. And they said they were going to do it, and it happened.
ट्रंप का ये बयान आपने सुना और इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ समझौते की कोशिशें अब भी जारी हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या इजरायल के साथ मिलकर ये बातचीतें यहां पर हो रही है या फिर अपने दम पर इस युद्ध को रोकने की कोशिशें ट्रंप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजरायल तो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं और वो चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए। JD is involved, and Marco is involved, and Jared Kushner is involved, very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved, and I'm involved. I'm involved. Why? I'm going to be so big. Oh, I don't want to talk about it. I'm the president of the United States, Tom, and I'm not going to talk about it. It's beneath me to talk about saving millions of lives, because that's what you're talking about. You're talking about saving millions of lives. और देखिए, इसी के साथ हिजबुल्लाह का इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल हमला भी देखने को मिला, जहां पर इजरायल के किरियात शमोना पर मिसाइल हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ये हमले यहां पर किए। इससे पहले भी हमने आपको यहां पर बताया हिजबुल्लाह किस तरीके से काम करता है, लगातार ईरान का समर्थक हो रहा है और ईरान से भारी भरकम फंडिंग भी हिजबुल्लाह को मिलती है। लेकिन लेबनान से वो ऑपरेट करते हैं। लेबनान एक दूसरा देश जिसकी सीमा इजरायल से लगती है, उसका जो पश्चिमी जो दक्षिणी छोर है वो इजरायल की उत्तरी छोर से यहां पर लगता है। और देखिए, वो इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील भी माना जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसी इलाके से ऑपरेट भी करते हैं और इसीलिए जो उत्तरी इलाका है वहां पर लगातार कई सारे टारगेट यहां पर हिजबुल्लाह की ओर से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने फिर से यह हमला यहां पर किया है और हिजबुल्लाह का सीधा टारगेट है इजरायल को कमजोर करना। और देखिए, ईरान की तरफ से लगातार इजरायल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है और अब क्लस्टर बम से भी हमले की खबर सामने आ चुकी है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में जो कैद हुई थी, जिनमें इजरायल में ईरान के हमलों से हो रही तबाही साफ दिखाई देती है। ये तस्वीर आप देखिए, क्लस्टर बम एक साथ गिरते हैं, एक ही मौके पर कई सारे बम एक साथ गिराए जाते हैं और ऐसे में इंटरसेप्शन करना इनका बेहद मुश्किल हो जाता है। तो बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं और अभी बंकर में छुप रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। तो बिखर रहे हैं ये बम, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया और अब होंगे जोरदार धमाके। तो ईरान की तरफ से फिर से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। इस बार टेल अवीव पे फिर से अटैक किया गया, जो कल दिन में अटैक किया गया था। बताया जा रहा है कि वो कन्वेंशनल वॉरहेड था, लेकिन इस बार जो हमने आसमान में देखा वो बिल्कुल क्लस्टर बॉम्ब्स थे, क्योंकि जो मिसाइल आया उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब जो है इर्द गिर्द बिखरे और उसके बाद जोरदार धमाके हुए, कई धमाके हुए। उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बॉम्ब थे वो फट रहे थे। तो फिलहाल ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि इसराइली फोर्सेस ने भी ईरान में कई हमले किए और दूसरी तरफ से नॉर्थ इसराइल में भी अटैक्स हुए। हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 38 रॉकेट्स दागे गए नॉर्थ इसराइल पर। वहां पर एक महिला की मौत हुई है और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 38 रॉकेट्स दागे हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर और अभी अभी जो हमला ईरान की तरफ से किया गया वो टेल अवीव पर ये मिसाइल दागा गया और हमने देखा कि ये क्लस्टर बॉम्ब था। कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल कल टेल अवीव पे किया गया था और अब फिर से ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। और देखिए, इराक में मरकी ब्लैक हॉक को मार गिराया गया है, जहां पर विक्टोरिया बेस पर यूएस ब्लैक हॉक को मार गिराने का दावा किया गया। इराक के विद्रोहियों का ब्लैक हॉक गिराने का ये दावा यहां पर है। इराक में कई सारे विद्रोही ग्रुप हैं, आपको बता दें, जो ईरान का समर्थन करते आए हैं। मिलिशिया ग्रुप्स वहां पर बहुत सारे हैं। ईरान उनको फंडिंग भी लगातार करता आ रहा है। ईरान ने तमाम देशों में, हूथी हो, हिजबुल्लाह हो, इसके अलावा हमास हो या फिर ये मिलिशिया ग्रुप्स, इनको लगातार उसकी ओर से फंडिंग दी जाती है ताकि वो खुद को और ज्यादा मजबूत रख सके उन तमाम क्षेत्रों में। और ऐसे में आपको ये भी तस्वीर भी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं ग्रुप्स की ओर से ये अटैक यहाँ पर किया गया। छोटे मोटे कई सारे अटैक्स वहां पर इनकी ओर से किए गए हैं ईरान के समर्थन में। और आप देखिए, जो खास तौर पर हमारी की बेस है वो उनके टारगेट पर है।
और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में ईंधन सप्लाई को लेकर देखिए बड़ा भरोसा दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश की सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है, जबकि कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 50% तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ इलाकों में पैनिक बाइंग की खबरें आई हैं, लेकिन लोगों से अपील है कि घबराकर खरीदारी ना करें। वहीं स्कूल, कॉलेज और कैंटीन में पीएनजी कनेक्शन 5 दिन में देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। महायुद्ध के बाद से देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस ने संकट की अफवाहें फैलाई जा रही, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लोगों को ये बड़ा भरोसा दिया और पैनिक खरीदारी से बचने की अपील की है। All the refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories. We have sufficient stock of petrol and diesel. Refineries, the domestic production of LPG has been stepped up in the refineries. We have more than 1 lakh retail outlets, and there is normal operation on all the retail outlets.